Assalamu alaikum. I am Misbah. I'm Misbah. I'm doing occupational therapy from Khyber Medical University, and I am the co-founder and management director of Holistic Rehabilitation Service. So, first question is, what is holistic? Holistic is a platform which is providing you a complete rehabilitation team. So, rehabilitation team consists of a physiotherapist, an occupational therapist, and a speech and language pathologist. So, we are providing you in a single platform. Okay, so today हमारे साथ जो हैं मौजूद हैं हम नाजिश अब्दुल कादिर मौजूद हैं हमारे साथ. मोस्टली लोग आप लोगों में से जो है वो उनको जानते हैं, बट एक शॉर्ट सा इंट्रो में दे देती हूँ कि शी इज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम जनाब पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर कराची, एंड शी डिड ट्रांजिशन ब्रिजिंग कोर्स ऑफ OT फ्रॉम KMU. She had worked with Al Umeed Rehabilitation, RMT Institute of Neurosciences and Aga Khan University Hospital के साथ भी काम कर चुकी हैं. KMU के साथ she is working from last 2.7 years as an occupational therapy lecturer, and she is also working with as a consultant in Rahman Medical Institute, and she is a student of Master in Health Profession in Education from Khyber Medical University. So, Assalamu alaikum. Walaikum assalam. How are you, Misbah? How are you, ma'am? I'm good. I'm How good, are you? alhamdulillah. I'm good, alhamdulillah. So, बेसिक इंट्रोडक्शन जो OT का है वो तो हम लास्ट सेशन में कर चुके हैं कंप्लीट. बिल्कुल. और बहुत डिटेल से हमने इस बारे में बात की, व्हाट इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इसकी बेसिक फील्ड्स के बारे में बात की हमने, और इसके बारे में हमने कुछ जो डिसऑर्डर्स हैं उनको भी हमने डिस्कस किया था. और हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज़ इंक्लूजन ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी इन स्कूल. ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है दैट इज व्हाट इज इंक्लूजन. इंक्लूजन क्या है? Okay, see, the topic is inclusion and role of occupational therapy in school settings. So, why I use the word inclusion, because normally लोग inclusion को बहुत misunderstood करते हैं. So, that's why I choose the word inclusion. Let me tell you what is inclusion. See, the word itself telling it means to include. राइट. उर्दू में हम देखें तो इसका मतलब है शमूलियत. नाउ इंक्लूजन मीन्स दैट ऑल द पीपल इन द society, despite of or regardless of their physical or psychological or socioeconomic status or financial status, they all have the equal right to participate in all the activities of the society. They need to be respected. They should be appreciated as a valuable members of the community. So this is what the term inclusion means. मतलब तमाम लोग जो सोसाइटी में मौजूद हैं उन सबका इक्वल राइट है कि वो तमाम जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सोसाइटी की उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें. But as far as the inclusive education, the term inclusive education is concerned, it is different. It means that all the children, from all the children, I mean all the vulnerable children, the street children, the children with low social or economic background, या वो बच्चे जो किसी भी वजह से नॉर्मल स्कूलिंग या एजुकेशन में नहीं जा पाते, एंड children with special needs, they all have the right to receive education. So this is what inclusion. So it is a broad term. इस broad term में वो तमाम बच्चे भी आ जाते हैं जिनके साथ कोई फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी है या नहीं है, या किसी भी वजह से वो एजुकेशन नहीं ले सकते. सो दिस इज व्हाट इंक्लूजन इज अबाउट. ओके, सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्लूसिव स्कूल्स एंड मेन स्ट्रीम स्कूल्स. ओके, सी, अच्छा, अब मैंने आपको पहले बताया कि इंक्लूजन एक ब्रॉड टर्म है ना. अगर पहले मैं आपके स्कूल्स के बारे में बताती हूँ. सी, मेन स्ट्रीम स्कूल्स आर नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स जो हमें हर जगह नजर आते हैं ना, जो रेगुलर स्कूल्स हैं हमारे, दे आर मेन स्ट्रीम स्कूल्स. And inclusive schools are those schools who accommodate other children and cater their needs. और उनको एक रेगुलर स्कूल सेटअप में जिस तरह से सेटअप किया जाता है, अगर इस तरह का कोई सेटअप है तो दिस इज व्हाट वी कॉल इंक्लूसिव सेटअप. अच्छा, मैंने आप लोगों से पहले बात की थी व्हाट इज इंक्लूजन. सो इंक्लूजन बेसिकली ब्रॉड टर्म है. अब ये तो एक पूरे तमाम बात हुई ना कि तमाम बच्चों के पास पूरा हक है कि वो एजुकेशन हासिल करें.
बिल्कुल। बट जब हम उन लोगों की बात करते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो उनके लिए बेसिकली दो टर्म्स यूज होती हैं। सिंस वी आर हेयर इन द लाइव सेशन, बिकॉज हम चाहते हैं कि एक आम आदमी तक ये बात पहुंचे, तो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल, बिकॉज हम कभी कभार इंक्लूजन एंड इंटीग्रेटेड एजुकेशन को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं. So मैं one by one जाऊंगी. I'll first explain what is integrated education, and then I'll explain what is mainstreaming. So integrated education ये है कि for example there is a child who needs a special accommodation to sit in a regular classroom. ठीक है, अब उस रेगुलर क्लासरूम में फॉर सिटिंग फॉर अ होल डे ही नीड सम स्पेशल अरेंजमेंट्स. अगर वो अरेंजमेंट्स उसको वहाँ मौजूद मिलती हैं, उसके साथ आईईपी होता है, आईईपी इज इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान, उस बच्चे के लिए एक स्पेसिफिकली टीम एक पूरा एजुकेशन प्लान करती है कि वो उस स्कूल में कैसे रहेगा और उसको क्या क्या किस किस तरीके से एजुकेट करना है और उसको किन किन चीज़ों की नीड होगी. इसके साथ वो एक रेगुलर क्लास में बैठता है with or without a resource person or teacher. This is what we call integrated. Okay, this is what integrated education. अब इस integrated education की मैं example आपको ऐसे देती हूँ. For example, there's a child who can't see. ठीक है, अब he has the ability to cope up with the society because उसकी intellectual level तो बिल्कुल ठीक है. So he has the right to sit in this society और वो normal activities कर सके. But ड्यू टू द रीजन दैट ही कांट सी, तो उसको ब्रेल चाहिए होगा और कुछ ऐसी स्पेशल एनवायरमेंटल एडेप्टेशन चाहिए होंगी कि वो उस क्लास में इजीली गो थ्रू कर सके. एंड इन एडिशन टू दिस उसके साथ फिर ये भी चीज़ भी चाहिए होगी कि उसको साथ एक रिसोर्स पर्सन हो जो उसको टाइम टू टाइम हैंडल कर सके. बिल्कुल. So this is what integration education. It is a part of inclusion, but when it comes to special needs और पूरे दिन के लिए अगर उस बच्चे को रेगुलर क्लास में वक्त गुजारना है, उसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन. ओके, अब हम बात करते हैं व्हाट इज मेन स्ट्रीमिंग. सो मेन स्ट्रीमिंग इज यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रैटेजी यूज इन इंक्लूजन. दैट मीन्स द चाइल्ड विल सिट in a regular classroom and वो तमाम वो एक्टिविटीज फॉलो करेगा जो बाकी बच्चे कर रहे हैं उस क्लास में फॉर अ लिमिटेड टाइम. इंटीग्रेटेड एजुकेशन में तो वो सुबह हर पूरा वक्त वही था ना, बट इन मेन स्ट्रीमिंग उस लिमिटेड टाइम में बैठेगा अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ दैट चाइल्ड. इसकी एग्जांपल आप ऐसे लें, फॉर एग्जांपल एक ऐसा बच्चा जिसका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा नहीं है कि हम उसको उसकी क्रोनोलॉजिकल एज के मुताबिक फॉर एग्जांपल क्लास 6 में बिठा सकें. ठीक है, बट हमने उसको उसके एज ग्रुप के साथ सेट करना है. सो आइडियली ये होगा कि वो ड्राइंग की क्लास या म्यूजिक आर्ट्स इन क्लास में नॉर्मल बच्चों की तरह जो असाइनमेंट्स उसको मिलते हैं इसको भी मिलेंगे और बिल्कुल उसी तरह से वो रहेगा विदाउट अ रिसोर्स पर्सन. एक नॉर्मल लाइफ प्रोवाइड करेंगे. एग्जैक्टली, बट वो लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा. जब वो उनके साथ वो वाली क्लास लेगा, उसके बाद जब उनके दूसरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तो वो पुल आउट टाइम होगा उस बच्चे के लिए जिसमें उसकी रेमेडियल थेरेपिस्ट या उसके जो भी दूसरे थेरेपिस्ट और एडिशनल लोग हैं उसकी क्लासेस लेंगे. So this is what is mainstreaming. So all these terms comes under the umbrella of inclusion, but they are quite different from each other. So हम basically ये होता है कि हम inclusion को mix up कर देते हैं चीज़ों के साथ. Yes, हम डिफरेंशिएट करना जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. Exactly. So इसके बेनिफिट्स क्या हैं जो ये जो इंक्लूसिव स्कूल्स होते हैं इनके बहुत जो आप ब्रीफली हमें अगर थोड़ा बता सके कि इनके क्या बेनिफिट्स होते हैं इस किस्म के चाइल्ड के लिए. ओके, देखें, एक चीज़ ये है कि why we send our child to schools, मतलब why we send our children to school. हम क्यों चाहते हैं कि वो एजुकेशन लें अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक देयर अचीवमेंट. हम क्यों चाहते हैं कि वो ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो उसका रीज़न ये है कि स्कूल्स बेसिकली आपकी सोशल इन्वॉल्वमेंट को बढ़ाते हैं, आपको ये बताते हैं कि आपको सोसाइटी में कैसे मूव करना है. एग्जैक्टली, वो आपको मैनर सिखाते हैं, बिहेवियर्स. यस, सो at the same time the inclusion is good for the people with special need. ये उन बच्चों के लिए भी इतना ही ज़रूरी है जो एक रेगुलर स्कूल अटेंड कर रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी इज़ वेरी डाइवर्स.
हम सब इक्वल नहीं है, वी ऑल आर डिफरेंट। Yes. बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा होना कि सॉरी बच्चों के अंदर ये एहसास पैदा होना कि वी हैव टू एक्सेप्ट एवरीबडी इन द सोसाइटी, वी शुड नो हाउ टू रिस्पेक्ट अदर्स, और वो एक्सेप्टेबिलिटी आएगी, प्लस वो किस तरह से लोगों की हेल्प कर सकते हैं, और वो हाउ दे कैन बी अ गुड एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सो इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन हु आर अटेंडिंग द रेगुलर schools, as well as it is equally important for the children who have special needs. Because see, फॉर एग्जाम्पल स्पेशल स्कूल में हम किसी को भी सेग्रीगेट करके उसको एजुकेट नहीं कर सकते. वी आर लिविंग इन दिस सोसाइटी, सो वी हैव टू मेक देम लर्न while being in the society. So it is important for both of the children कि ये inclusive setup introduce हो हमारे यहाँ पाकिस्तान में. There are many cities in Pakistan जिसमें अब ये inclusion का concept आ गया है, but still awareness is अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है. बिल्कुल, अवेयरनेस तो बहुत मेन प्रॉब्लम ही अवेयरनेस है. जब तक कि यहाँ पे अवेयरनेस नहीं आएगी, लोगों को पता नहीं चलेगा कि यार इट्स इम्पोर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों के लिए. और ये जो लोग होते हैं, लाइक हमारे यहाँ यही एक अवेयरनेस सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपको पहचानना है कि आपके बच्चे में एबिलिटी है, ठीक है, आपको Exactly. उसको लाना है सामने, ठीक है. बिकॉज वही बात है कि अगर अल्लाह ताला ने आपको एक चीज जो है उससे महरूम किया है, तो आपको एक और एबिलिटी उसने दी हुई होती है जो कि और लोगों के पास नहीं होती. तो हमें See, उस this चीज is को yes, देखना पड़ता है. exactly. And अब तो ये है ना कि inclusion is, it's in concept कि everybody learn on their own and everybody have different intelligence. So हम पढ़ते हैं ना, there are 8 type of intelligences, और उसमें कुछ mathematicians होते हैं, कुछ linguistic होते हैं. So everybody is so different. Even अगर आप एक regular classroom में भी देखें तो everybody is different. There कोई एक ऐसा बच्चा होगा which is very good in viva thing, and कोई एक स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होगा. सो उनके लिए जो लेसन प्लान और जिस तरीके से पढ़ाया जाता है उसमें भी तो आपकी डाइवर्सिटी होती है ना. सो व्हाई नॉट टू इंक्लूड ऑल द अदर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी इन द मेन स्ट्रीम स्कूल. सो दिस इज ऑल अबाउट द आइडिया ऑफ इंक्लूजन. ओके. तो पाकिस्तान में हमारी जो है वैसे तो स्पेशली केपीके में बहुत ज़्यादा कमी है इस अवेयरनेस की. अगर हम देखें कराची में, लाहौर में तो थोड़ा बहुत बेटर जो है वो हमें कंडीशन मिलती है. तो पाकिस्तान में ये इंक्लूसिव स्कूल्स या इंक्लूजन के बारे में कुछ हमारे जो है वो गवर्नमेंट के लेवल पे या नॉर्मल लेवल पे कुछ स्टेप्स वगैरह लिए गए हैं, या इस तरह के कुछ डिसेबल चाइल्ड जो होते हैं उनके लिए कुछ इस तरह के स्पेशल स्कूल्स या इस तरह कोई जो है सेटअप किया गया है? देखें, ये जो इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट है ना, और राइट्स फॉर स्पेशल पर्सन्स या राइट फॉर डिसेबिलिटी, ये कुछ 1980s में स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में रेवोल्यूशन, और लोगों को कुछ ये आइडिया होना शुरू हुआ. फिर कुछ 1980s में एक हमारे पास बिल ये आया कि जी चीज़ों को बेहतर करना चाहिए और इनके लिए अलग राइट होना चाहिए. फिर एक और बिल ये पास हुआ कि नहीं, देयर शुड बी सेग्रीगेशन, हमें डिफरेंस रखना चाहिए स्पेशल स्कूल्स और मेन स्ट्रीम स्कूल्स में. बट अब जो रीसेंट नेशनल एक्शन प्लान है और जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज इन 2012 आई गेस. सो वो दोनों सपोर्ट करती हैं इंक्लूजन को. ठीक, तो जो आपका पाकिस्तान का जो लॉ है तो ये तो बहुत ज़्यादा कर रहा है सपोर्ट, बट स्टिल अभी हमारे पास स्पेशल स्कूल ज़्यादा हैं और इंक्लूजन की बहुत कमी है. यू आर राइट, बिकॉज केपीके में, बट यू नो आई वॉज वेरी एस्टोनिश्ड टू सी, बिकॉज पेरेंट्स आर रियली वेरी अवेयर. मैंने कुछ पेरेंट्स से मिली और they know very well that what is inclusion and resource person को कैसे train करना है, उनको क्या करना है. But the role of schools is very important ना. अब अगर मेन स्ट्रीम स्कूल या रेगुलर स्कूल्स इस चीज़ को अप्रिशिएट करें और एक्सेप्ट करें, सो दिस इज़ व्हाट इम्पॉर्टेंट. जब आप इनिशियली लोगों को बताना शुरू करते हैं तो लोग कहते हैं दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट, हाउ टू डू दिस. आई मीन इट इज़ वेरी अब एक टीचर जो 25 बच्चों को पढ़ा रहा है एक क्लास में, या 20 को पढ़ा रहा है, या व्हाटएवर जो भी क्लास की स्ट्रेंथ है, उसके लिए एडजस्ट करना, उसका जो स्टेमिना बिल्डअप है वो यही बिल्डअप है ना, कि इसी तरीके से करना है, और यही हमने एक प्लेटफॉर्म और यही हमने एक तरीका फॉलो करना है. सो फैकल्टी ट्रेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल.
पाकिस्तान में यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएसएड की तरफ से जितने भी हमारे ट्राइबल एरियाज हैं ना, इवन इन आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर में उस दिन पढ़ी थी, यूनिसेफ का एक प्रोजेक्ट भी चल रहा है, उन्होंने काफ़ी रिसर्च भी किया, पायलट स्टडी भी की इस पे। बट ये है कि उसकी ऑब्वियसली अभी अवेयरनेस बहुत कम है, बट somebody has to start from somewhere. Somebody has to start from somewhere. किसी को तो लेना ही होगा हमें, मतलब एग्जैक्टली कराची और लाहौर में आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इवन इस्लामाबाद में भी। ओके, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो रोल है मेन स्ट्रीम स्कूल्स में या ये जो स्पेशल स्कूल्स हैं, इनमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी का कितना रोल है और क्या क्या रोल है? सी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का मतलब ही वो है जो आपके पेज का मतलब है, holistic. Holistic means a complete approach. Yes, I can hear you. Can you hear me clear? मिसबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो? ओके, सो पाकिस्तान में जो आई गेस मुझे मिसबा आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलो, क्या आवाज आ रही है? So holistic occupational therapists apply a holistic approach. That means occupational therapists work on the well-being of an individual. That means occupational जो भी आपके school occupation है, for example academics, involvement in the extracurricular activities, leisure time activities, play activities, ये सब वो occupation है जो एक बच्चे के होते हैं स्कूल में. So occupational therapists are basically activity analysis, or they do the analysis of the environment, and they have the ability to identify the barriers a child is facing in completing the occupations of his daily living. So, and even in mainstream schools there are a lot of children who have problem. I mean, there are many children who have sensory issue which remain undiagnosed, और वो बहुत ऐसे जज होते हैं कि शायद ये बच्चे या कोई behavioral issues हैं, या obviously कोई proprioceptive issues हैं, या कोई sensory issues हैं, तो वो बेसिकली इसी तरीके से जज होते हैं कि दिस चाइल्ड डजंट हैज एनी प्रॉब्लम, जनरली इट्स अ बिहेवियर प्रॉब्लम, और वो इसीलिए इस तरीके से कर रहा है. तो एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के होने से ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो सकती हैं. बच्चों की जो भी परफॉर्मेंस है ओवरऑल इन ऑल द ऑक्यूपेशन वो इम्प्रूव हो जाती है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन स्कूल टू हैव एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ऑन बोर्ड for both regular schools and special schools, and obviously inclusive too. यही तो एक चीज़ है कि जो हमें डिटरमाइन करनी है कि अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो स्कूल्स में एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होना लाजमी है, क्योंकि आप के बच्चों को बहुत हर बंदा डिटरमाइन नहीं कर सकता, तो आपको डिटरमाइन करने पड़ते हैं. पेरेंट्स भी नहीं कर पाते, ना स्कूल्स में बच्चों को जो है वो कोई समझ पाता है. ठीक है, तो वो प्रॉब्लम जो है वो टाइम के साथ साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. ठीक है, और टाइम के साथ साथ जब वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर जब एज बच्चों की ज़्यादा हो जाती है तो उनमें वो बहुत बड़े किस्म के बिहेवियरल इशू जो है वो क्रिएट करते हैं. तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि लोगों को इस चीज़ का पता चले कि स्कूल्स में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का होना कितना इम्पॉर्टेंट है. Plus, let me tell you that occupational therapist is a very important part of a rehabilitation team. When you talk about inclusive schools or inclusive setups, तो वहाँ पर एक चीज़ follow होती है जिसको हम कहते हैं IEP. It is individualized educational plan. That means for every children is different and every children learn differently. So उस IEP के according वो एक पूरी टीम होती है जिसमें आपके स्पेशल एजुकेटर्स भी हो सकते हैं, आपकी क्लास टीचर हो सकती है, प्रिंसिपल, आपके पेरेंट्स, आपकी स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, एंड बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो उस आईपी में मौजूद हों अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट. तो उस आईपी को किस तरह से करना है और उसकी डेली ऑक्यूपेशन में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, इट्स द जॉब ऑफ एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट. हैंड राइटिंग एनालिसिस एंड उसकी प्ले एक्टिविटीज, इवन उसके प्ले ग्रुप से लेके
मैट्रिक तक, इवन आई वुड से कि स्कूल्स में और कॉलेजेस में भी देयर इज अ डायर नीड ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें किस तरह की सपोर्ट और किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो है, जो कि एक इंक्लूसिव स्कूल जो है उसके लिए उसकी नीड है, एक ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने की। तो इसके बारे में अगर कुछ एलिब्रेट कर सकें। देखिए, मैं जब पढ़ रही थी ना हमारी हिस्ट्री, तो अगर आप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को देखें ना, तो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सेज के 15% ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है, सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, 15% ऑफ पॉपुलेशन। अब पाकिस्तान का जो सेंसस था 90s में हुआ था, वो सेंसस, उसके अकॉर्डिंग अराउंड हमारी 2.4 to 2.5% ऑफ द पॉपुलेशन इज फेसिंग सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। यही जब सेंसस हमारे पास 2000 की आई गेस 2009 या 2012 में हुआ था, उसमें दिस ग्राफ हैज डिक्लाइन हो गया और वो कुछ पॉइंट समथिंग में आ गया, और उसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और कोर्ट ने भी बड़ा किया था, बिकॉज उन्होंने जब इस चीज़ को करना शुरू किया, जब उन्होंने ये मर्दमशुमारी का काम शुरू किया, तो उसमें उन्होंने डिसेबिलिटी की बहुत सारी चीज़ों को ऐड ही नहीं किया था, और उसमें उस लोगों को ऐड ही नहीं किया गया, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास अभी तक क्लियर सेंसस भी नहीं है कि कितनी हमारे पास डिसेबिलिटी या स्पेशल नीड के लोग मौजूद हैं ऑल ओवर द पॉपुलेशन। अब अगर आप देखें तो अगर 2.5% पॉपुलेशन भी है अफेक्टेड, ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होगी, ठीक है। ये तो एक हमारा पुराना है ना 90s का, तो 20-25 साल गुजर चुके हैं, ठीक है। अब तो स्पेशल नीड्स की तरीके वो भी बढ़ गए ना। अब तो हमें पता चल गया है कि जी सेंसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हैंड राइटिंग डिफिकल्टी, बिहेवियरल इश्यूज इतने आ रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हमारे बच्चों के अंदर। सो होता क्या है कि अब हमारे पास नॉर्मल स्कूल्स बहुत सारे नॉर्मल स्कूल्स हैं, रेगुलर स्कूल्स हैं, बट हमारे पास स्पेशल स्कूल्स बहुत लिमिटेड हैं। अगर आप हम चलो स्पेसिफिकली हम केपीके की, इंटीरियर सिंध की, या हम अंदरूने पंजाब की भी बात करें ना, तो वहाँ पर हमारे पास बहुत कम है स्पेशल स्कूल्स। अब आपको लगता है कि इतनी तादाद बच्चों की क्या अकोमोडेट हो सकती है? नहीं हो सकती ना, वो कैसे पहुंचेगी वहां तक। और अगर आप मैं पेशावर में भी देखूं तो गिन चुन के मेरा ख्याल है 5 या 7 स्कूल होंगे, और वो भी डिफरेंट तरह की नीड्स को कैटर करते हैं। कुछ सिर्फ ब्लाइंड के लिए हैं, कुछ सिर्फ फिजिकल प्रॉब्लम्स के बच्चों के साथ उनके लिए हैं। सो अगर ये जो मेन स्कूल है, रेगुलर स्कूल्स तो आपको हर जगह नजर आएंगे, तो अगर यहाँ एक इंक्लूजन का सेटअप हमारे पास आ जाए तो होगा ये कि हमारी पूरी आवाम को बहुत फायदा होगा, और हर तरह के जो लोग हैं वो समझ सकेंगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है कि बाकी तमाम लोग जो सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इंक्लूड हों, ठीक है, और वो भी आगे बढ़े। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, इस वक्त जो प्रॉब्लम है, देयर इज अ नीड ऑफ ग्रेजुअल चेंज। हम एकदम से कोई भी चीज सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। सो वी नीड अ ग्रेजुअल चेंज, we need a gradual realignment of the school administrations and the school strategies. अब उससे क्या होगा, ये ग्रेजुअली जो है ना, हम बीइंग अ पाकिस्तानी कौम, हम इस चीज को एक्सेप्ट भी कर सकेंगे। So infrastructure, I was going through some of the researches which have been done in Pakistan on inclusion and inclusive schools, और उसमें अगर आप normally सबके results और conclusion देखें ना बेटा, तो आपको एक चीज ये नजर आएगी, they say कि we need in the structural realignment of the school, we need faculty training. Faculty training is very much important, because आप पेरेंट को जितना भी काउंसिल करें, पेरेंट जब जाता है ना स्कूल, तो उसको सॉरी मेरा गला थोड़ा खराब है, तो उसको स्कूल वाले ये कहते हैं कि हमारी टीचर जो जी ट्रेन है 20 बच्चों को देखने के लिए, वो इस बच्चे को स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकती। फिर रिसोर्स पर्सन जो है वो प्रॉपरली अच्छी तरह से एजुकेटेड नहीं है, ट्रेन नहीं है इन सारी चीजों के लिए। सो द कॉन्सेप्ट इज नॉट रॉन्ग, इट्स ऑल अबाउट लोगों को अवेयरनेस नहीं है और हमारी फैकल्टी ट्रेन नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारी जो फैकल्टी है और जो हमारे टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अवेयरनेस तो वहीं से आएगी ना। इसके अलावा
आप देखें आपको नॉर्मली बहुत सारे स्कूल्स में आपको accessible नहीं मिलेंगी जगह. There are no ramps, washrooms are not accessible for the people who have difficulty, जो फिजिकली जो है वो चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं. फिर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. सो एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में और हमारी ट्रेनिंग ये सब चीज़ें काउंट करती हैं. सो आइडिया ये है कि ग्रेजुअल रीअलाइनमेंट, स्मॉल स्टेप लेके इंशाल्लाह ताला हम पहुंच जाएंगे वहां तक. एग्जैक्टली. तो यही कि आपको हर लेवल पे लोगों को ट्रेन करने की ज़रूरत है. पेरेंट्स और टीचर्स, फैकल्टी मेंबर्स, स्कूल की सबको इस चीज़ को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि जो अच्छा डिसेबिलिटी जो होती है ना वो नॉर्मली हम कुछ लोग समझते हैं कि बस जो कि नज़र आती है वही डिसेबिलिटी होती है. लाइक डिसेबल चाइल्ड सिर्फ वही होगा कि चलो अगर उसको फिजिकली कोई इफेक्टेड है या उसका बिहेवियरल कोई इफेक्टेड चीज़ इफेक्टेड है, सो वी से कि या इट्स ये डिसेबल है. Exactly. बट समटाइम्स ऐसा होता है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो नॉर्मली लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पाते. ठीक है, जैसे कि साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, वो जस्ट एक साइकेट्रिस्ट है वो उनको डील कर सकता है. एक नॉर्मल इंसान आपको नहीं बता सकता कि क्या इश्यूज चल रहे हैं इस बंदे के साथ. इसी तरह ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं. एग्जैक्टली. यस मैम. तो हमें इस चीज़ को वो कहते हैं जिसका काम होता है उसी को पता होता है कि उसको कैसे करना है. तो ये चीज़ डिटरमाइन करने की, लोगों को इस चीज़ पे सोचने की मिसबा, मैं सॉरी, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम, आई कैन हियर यू. मिसबा बड़ी अच्छी, मैं इसकी एग्जैक्टली मैं आपको बड़ी अच्छी सी एग्जांपल देती हूँ. जो आपने बात की ना, देयर आर लॉट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन एज वेल. कंडक्ट डिसऑर्डर है, बिहेवियरल मैनेजमेंट है, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो लोगों को समझ ही नहीं आती. वो बच्चे नॉर्मल और रेगुलर स्कूल्स में जा रहे होते हैं एंड दे रिमेन अनआइडेंटिफाइड, दे गेट बुलेट बाय द पीयर ग्रुप, और ये सारी चीज़ें वो फेस करते हैं. बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मैं हमेशा देती हूँ स्टूडेंट्स को भी अपने. आप सब लोगों ने देखी होगी फिल्म तारे ज़मीं पर. Yes. उसमें बेचारे बच्चे के साथ क्या हुआ था. ही वॉज सो इंटेलिजेंट, बस उसके साथ एक वो प्रॉब्लम थी, और वट आमिर खान वॉज डूइंग विद हिम was actually a job of an occupational therapist. वो उसके ग्रॉस और फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर रहा था. उसने कैसे उसको, इट्स नॉट कि उसकी एकेडमिक अचीवमेंट डिस्टर्ब हो रही है यार, उसकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब हो रही है, की पर्सनालिटी, उसका सेल्फ स्टीम, उसका कॉन्फिडेंस डिस्टर्ब हो रहा है. तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वर्क ऑन द वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल. सो वेल बीइंग क्या है? वेल बीइंग ये नहीं है कि वो बच्चा फिजिकली ठीक हो या साइकोलॉजिकली ठीक हो. ही शुड बी इमोशनली, फिजिकली फिट. उसको सेल्फ स्टीम उसकी अच्छी हो. ही शुड नो हाउ टू डील विद द सोसाइटी एंड हाउ टू मैनेज हिज सोशल रिलेशनशिप्स. देयर आर लॉट एंड लॉट ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरीज which are putting emphasis on peer group. So ये peer group और ये सारी चीज़ें अगर हम स्कूलिंग से स्टार्ट करेंगे ना, और ये सारी चीज़ें हमारे पास होंगी, पेरेंट्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स अवेयरनेस, टीचर एजुकेशन, तो ये चीज़ें अचीव करना ईजी होगा. Yes, बिल्कुल. So what is the benefit of inclusion for the children without disabilities? Like सिर्फ inclusion की importance जो है वो उन children के लिए नहीं है जो कि disability के साथ होते हैं, बल्कि कुछ ऐसे children भी हैं जो कि disability के साथ नहीं होते, but उनके लिए भी inclusion ज़रूरी होती है. So what are the benefits for them? अच्छा, एक हमारे पाकिस्तान में ना बड़ा ये बात है कि what is disability? God forbid if somebody is not walking properly, उसको शायद वॉक करने में कोई प्रॉब्लम है, उसके साथ कोई और इशू है जो हमें अपनी आंखों से देख के नजर आ रहा है, हम कहते हैं कि he has disability. See, if I have anxiety and if I cannot talk publicly, if I am not good in vivas and all the social activities, this is my disability. Simple. Yes. I mean, you don't need a label or a proper diagnosis for a disability. So everybody is different और सबके साथ होती है. हम ये कहते हैं कि जो बच्चे नॉर्मल रेगुलर स्कूल्स में जा रहे हैं, बच्चा चल के जा रहा है, अच्छी एकेडमिक अचीवमेंट है उसकी, दोस्तों के साथ खेल रहा है, ही इज परफेक्टली ओके. शायद कोई और ऐसा रीजन हो, शायद उसको एंजाइटी हो, शायद उसके बिहेवियरल इश्यूज हो, तो वो तो चीज़ें बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती हैं ना.
यस, वो किसी को नजर So नहीं आती नॉर्मली लोगों को। एग्जैक्टली तो वाई इंक्लूजन इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अब वो बच्चा शायद ये भी फील करे इंक्लूजन में रह के कि आई एम नॉट अलोन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल लाइक दैट एंड आई हैव द कॉन्फिडेंस टू मूव इन द सोसाइटी, यस, राइट? एग्जैक्टली। सो मैं भी बाकी लोगों के साथ हूँ और मैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हूँ सोसाइटी का। ये तो मैंने आपसे उनसे उनकी बात की जिनको स्पेशल नीड्स की जरूरत है या जो हमें बाहिर नजर आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके प्रॉब्लम्स हमें नजर नहीं आ पाते। यस, So it happens. Let me tell you, when I was a kid ना, so मुझे राइट और लेफ्ट डिस्क्रिमिनेशन में बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत लिटरली। और अब मैं सोचती हूँ कि शायद मे बी वो कोई सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर होगा मेरे साथ एट दैट टाइम, बिकॉज एट दैट टाइम अगर कोई मुझे कहता था कि सीधे हाथ पे मुड़ जाओ तो मैं सोचती थी कि मेरा सीधा हाथ कौन सा है। और मुझे याद है कि मुझे फिर इतनी प्रॉब्लम होती थी अपनी स्पेशली ये जो हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं उसमें मुझे इतनी प्रॉब्लम होती थी, बिकॉज अगर मुझे राइट साइड पे थ्रो करना है तो मेरे हाथ पे एक चोट लगी होती थी, मैं उसको देखकर अंदाजा लगाती थी कि ओके दिस इज माई राइट हैंड, आई हैव टू थ्रो एट दिस साइड। सी तो वो चीज तो किसी ने आइडेंटिफाई नहीं की। सो जब ऐसी चीजें होती हैं, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट इज अ स्किल्ड पर्सन, बहुत हद तक वो इन चीजों को आइडेंटिफाई कर सकता है। और इस इंक्लूजन का इसी तरह से बहुत ज्यादा फायदा है, हर तरह से सोशली इंप्रूव हो सकते हैं बच्चे, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सबसे बड़ी बात, दे कैन बी अ गुड एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, दे शुड नो हाउ टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स। यस, सो एग्जैक्टली। दिस इज द कॉन्सेप्ट। तो बहुत ज़्यादा लाइक मुझे तो मैं खुद एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी की स्टूडेंट हूँ, बट एज एम जूनियर तो मुझे इतना ज़्यादा इंफॉर्मेशन इस सब के बारे में नहीं थी। तो काफ़ी इन चीज़ों के बारे में अभी पता चला। और आप तो वैसे भी हमारी इंस्पिरेशन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो जब हम नॉर्मली एक कोई भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट स्टूडेंट जब हम होते हैं तो हम में से कोई भी जब इस फील्ड में आता है तो हमारे माइंड में एग्जैक्टली नहीं होता कि हम क्या करने वाले हैं, हमारा क्या काम है, ठीक है। तो जब हम टाइम टू टाइम जब इस तरह के लोगों से हम मिलते हैं तो हमें अंदाजा होता है कि यस वी आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, हमारी कहाँ कहाँ Exactly. ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे आके फिर हमें पता चलता है कि यार यहाँ पे हमारी लाइफ का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं है जहाँ पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत ना पड़े हमें। Exactly. वेदर Occupation. Exactly. बिल्कुल. हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कोई भी जो हमारी लाइफ की एक्टिविटी है बचपन से लेकर आपकी लाइफ की एंड तक आपको एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की जरूरत होती है। और स्कूल जो है वो एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज होती है। आप स्कूल जाते हो, वहीं से आपकी ग्रूमिंग होती है, वहीं से आप एक प्रोडक्टिव इंसान बन के निकलते हो। तो वहाँ पे अगर आपके लिए कोई प्रॉब्लम आपको है और वहाँ पे आपको कोई अवेलेबल नहीं होगा तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, बिकॉज आप लाइफ का एक बड़ा पार्ट जो है वो स्कूल में गुजारते हैं। अगर हम देखा Exactly. जाए तो 3 ईयर से लेकर फिर मैट्रिक तक हम स्कूल में होते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज वगैरह में भी। तो हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इंक्लूजन इज रियली रियली इम्पोर्टेंट फॉर Yes. everybody. Let me share something with you, Misbah. When actually I'm a student of Masters in Health Professional Education, ना, so हम basically educational जो भी difficulties होती हैं, even at the university level हम उसको भी address कर रहे होते हैं, उसके बारे में पढ़ रहे होते हैं. So when I was attending my module, I got to know that there are a lot of students who have dyslexia in our class, or sorry, not in our class, मतलब in our surroundings. So I was like कि देखें यहाँ तक भी पहुँचकर they remain unidentified और उनके साथ ये issues होते हैं. So occupational therapy is a complete approach. वो आपको आपके life के किसी भी part पे, not on the daily activities of daily living, an occupational therapist will help you on the things you want to do, the things you are expected to do in the society as a गुड एंड प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी. सो वो सारी चीजों को आपको करने में आपको हेल्प आउट करता है. इवन इफ यू कैन नॉट प्ले अ गिटार, एंड इफ यू वांट टू प्ले अ गिटार, एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट कैन हेल्प यू विद दैट. देयर आर लॉट ऑफ वेज टू हेल्प यू. ओके, तो हमारे बहुत सारे जो हैं मोस्टली लोग यहाँ से हमारे पास जो हैं वो दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो डिफरेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपी, वेदर इट्स स्पीच थेरेपी और या चाहे हो जाए ये फिजियोथेरेपी। तो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो हमें फॉलो करते हैं, यहाँ पे हमें ज्वाइन करते हैं लाइव सेशन में।
तो उनके लिए अगर आप कोई मैसेज देना चाहिए, या नॉर्मली भी जो भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आप अगर उनके लिए उनको बताना चाहें इस फील्ड की इम्पोर्टेंस के बारे में, या आप कोई भी मैसेज देना चाहें तो। Okay, let me share you again my experience with you. ओके मैं जब ऑक्यूपेशनल थेरेपी में आई थी ना, मतलब आई वाज डूइंग माइक्रोबायोलॉजी फ्रॉम अ कॉलेज, और मुझे बिल्कुल वो उसमें मेरा दिल ही नहीं लगता था. सो आई केम टू जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, और जब मैं पहले दिन आई थी तो सिंस आई डिडंट न्यू, मेरा एडमिशन भी 1 महीना लेट हुआ था. मैं अक्सर अपने स्टूडेंट को ये वाली कहानी बताती हूँ, और मैं कहती थी कि यार मैं कहाँ आ गई हूँ. आई मीन what is this, what are they doing? They were doing some practical of TAT, और उस पे हम stencil से पेंटिंग कर रहे थे. उसके बाद then I got to know कि wow, I mean इस तरह की फील्ड भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में. एंड वी हैव सो मच रोल्स, वी हैव occupational therapist has roles in each and every sector of this society. So I mean, this is my message to all of the students who are studying occupational therapy. Please don't lose your confidence, because you are in one of the best fields in this world. Okay, so you are in a very noble profession. हम हमारे यहाँ सिर्फ एक, मैं आप लोगों का लास्ट सेशन सुन रही थी, उसमें भी ये बात है, बिकॉज हमारा जो कल्चरल सेटअप है वो ये है कि इफ समबडी इज अ डॉक्टर, अगर उसके नाम के आगे डॉक्टर लगा हुआ है तो ही इज गुड. बस अब ये है, अब होता ये कि लोग यार बस यही चीज हाँ है, डॉक्टर लगा लें अपने नाम के साथ, तो बस हम एग्जैक्टली. बट आई से कि अगर सब डॉक्टर बन जाएंगे तो हु विल बिकम एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हु विल हेल्प इन दिस इंक्लूजन, एंड हु विल हेल्प द अदर पेशेंट. और अगर सब ओटी या डॉक्टर्स बन जाएंगे तो फिर कौन काम करेगा जी स्पीच के साथ, और कौन फिजिकल थेरेपी के साथ काम करेगा. सो एवरी प्रोफेशन हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंट, एंड एवरी प्रोफेशन इज इम्पोर्टेंट. सी, we being an occupational therapist, we cannot do wonders alone. We need a team, and for this team, obviously a physical therapist is very important. Occupational therapists are very important. Speech and language pathologists are very important. So it's a rehabilitation team. Bagair team ke you cannot rehabilitate anybody, completely. So har kisi ki apni importance hai. Yes, एग्जैक्टली. रिहेबिलिटेशन इज इम्पॉर्टेंट. डॉक्टर आपको दवाई लेकर या ऑपरेशन करके वो आपको छोड़ देता है. आप अपनी डेली लिविंग एक्टिविटीज में कैसे वापस आएंगे, आप कैसे अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करेंगे. दिस इज व्हाट द job of the rehabilitation team, and we are really very important, and we should be proud of being a part of an rehabilitation team. So stay happy and stay confident about it. Yes, what are you doing? देखिए, हर इंसान किसी न किसी फील्ड के लिए बना होता है. हर इंसान डॉक्टर बनने के लिए या इंजीनियर बनने के लिए पैदा नहीं होता. तो जहाँ के लिए हम बने होते हैं, हम वहीं जाते हैं, और हर इंसान की एक्सपर्टीज होती हैं, ठीक है. और अगर आपको अल्लाह ताला ने इस फील्ड में लाया है कि आप इस तरह लोगों की हेल्प कर सकते हो, तो यू शुड बी प्राउड कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है. और अपनी फील्ड को सबसे पहले आपको समझना चाहिए. जब तक हम समझते नहीं हैं, हमें पता नहीं चलता कि हमारी फील्ड क्या है. And Misbah, nobody is less than anyone. Nobody is less than anyone. Neither a physical therapist is superior than you. Neither an occupational therapist is superior than a speech language pathologist. Everybody has its own importance. You're very right. बिल्कुल. और इसके अलावा एक और चीज़ की जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हमारा मेन टॉपिक जो था जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज children with disability या children with behavior issues, children with psychological issues. इसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है कि यार they are the part of our society, ठीक है. हमने उन्हें एक्सेप्ट करना है, हमने उन्हें फील करवाना है कि जैसे हम हैं आप भी हमारी तरह हैं. हमने उन्हें सोसाइटी का एक प्रोडक्टिव मेंबर बनाना है. तो इसके बारे में भी अगर कुछ ट्रू. सी, पहले तो मैं ये बात करूंगी कि देयर आर फ्यू पीपल हु से कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैज नथिंग टू डू विद द बिहेवियर. सी, और या हमारी जो एक कॉन्फ्लिक्ट आता है फिजिकल, इवन विद फिजिकल थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के, यू डोंट डील विद द बिहेवियर थेरेपी. आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि हमारे साइकोलॉजिस्ट के साथ आता है. नॉर्मली मिसकॉन्सेप्शंस की वजह से ये प्रॉब्लम होता है. सी, occupational therapists work with functional activities. So if you are making a child or an adult to do a functional activity, and if that child has behavioral issues, you have to deal with it, right?
सो उस बिहेवियरल इशू के साथ डील करने के लिए यू शुड नो हाउ टू डील विद द बिहेवियरल इशू, बिकॉज आप उस बिहेवियरल इशू के साथ डील करोगे तो ही तो आप उसको फंक्शनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकोगे. एट द सेम टाइम वो तमाम बच्चे जिनके साथ ऐसा कोई भी इशू है, या फॉर एग्जाम्पल if you're dealing with somebody who has some got physical issues, so आप stability endurance के साथ काम करें तो आपका overlapping हो जाता है. It's not that if you are involving that child or that person in a functional activity, you have to deal with his stability and endurance thing. So there is a fine line between this understanding. If one understand this, so ये roles बड़े different हैं और बहुत easily understandable हैं. I'm not sure, Ms. Ba, if you are listening to me or not. So I guess there is some problem with Ms. Ba's internet. So let me take the charge जब तक हमारी host नहीं आ जाती. So this is what all I have to say about inclusions and special education and how we can include children with special needs in our society. So this was important. Let me tell you about IEP. What is an IEP? IEP is an individualized educational plan. इस educational plan को बनाने के लिए we need a team of people. वो उस team में कौन कौन होगा, it depends कि उस बच्चे की needs क्या हैं, उस बच्चे का diagnosis या current state क्या है. So this IEP team may include an occupational therapist, a physical therapist, a speech and language pathologist, a normal class teacher. His parents, his or her parents are very important. So they all are a part of the team of IEP, individualized educational plan. And obviously उसमें goals set होते हैं, because there is a goal that, for example, 6 months में हमारा ये गोल है कि हम ये चीज़ अचीव कर लेंगे. अच्छा, अब हर मेंबर का अपना अपना गोल होता है, वो अपने गोल सेट करता है और फिर उसका रिव्यू होता है. डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द टीम के वो कितने लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए या कितने लॉन्ग पीरियड के लिए उसको आइडेंटिफाई करता है और कितने लॉन्ग पीरियड के बाद उसको जो है ना वो रीजन की तरफ लाता है या दोबारा से फॉलो अप किया जाता है. तो दिस इज ऑल अबाउट IEP. सो ये IEP फॉलो होते हैं हमारे इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी एंड मेन स्ट्रीमिंग में भी. दीज आर द टू स्ट्रैटेजीज विच आर यूज्ड इंटरचेंजेबली. इनिशियली अच्छी बात ये है कि मेन स्ट्रीमिंग की तरफ जाया जाए, बिकॉज आप किसी भी बच्चे को फॉरेन से एक नॉर्मल स्कूल सेटअप में ऑब्वियसली depending upon the state of that child आप उसको introduce नहीं कर सकते. So obviously you need to give him or her some sort of training, and for some sort of training, in addition to this training, you can expose him or involve him in social activities. So this is what the idea of IEP and mainstreaming. Inclusion में it happens कि inclusion में या integrated education में the child sits for the whole day in a class with or without any resource person if required. So it happens. So I guess हमारे host के internet के साथ I guess कुछ issues हैं. So I'll read out the comments. Let's wait for 30 seconds. अगर host आ जाते हैं then
Okay, so let's start reading out the comments. Maria Ihtisham say Walaikum Assalam. Bushra Khan said Assalamu alaikum. Walaikum Assalam. Pretty Angel says Assalamu alaikum. Subhanur Rahman Barki Sahab says good going, very informative. Thank you so much. Hifza Malik says love to see you both, ma'am and Misbah. Thank you, Hifza. Subhanur Rahman Barki says thank you so much for clearing up the concept of inclusion, Assalamu integrated alaikum. and mainstream Can you school. hear me? Yes, I can hear you. Welcome back. Okay. I'm really sorry. There was a No, no, it's problem okay. with my internet और वो नहीं चल रहा था. So I was connecting it, but वो connect नहीं हो रहा था. No, it's okay, Misbah. I was doing your job. I've started reading out the comments now. The So job is all आप yours, please. ओके तो अब हम ऐसा करते हैं कि क्वेश्चंस कुछ ले लेते हैं जो कि Sure. कुछ लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं. लोग बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं तो उसके लिए थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिस्पॉन्स के लिए. एंड Thank you so much. Okay, thank you so much, ma'am. Okay, so there's a question. What do you think about gender dysphoria? As a culture and religiously, it is not accepted. It is considered as a treatable mental disorder or something that is natural. See, there are two books which we follow for psychiatric issues. The one is DSM, and the other one is ICD. So DSM-4 tha when we were a student. Now it's Diagnostic Statistical Manual. Now and international criteria of diseases. So sorry, international classification of diseases, if I'm not wrong. So उसमें अगर आप देखें तो I've read it once about gender dysphoria. It's about assuming or staying as a part of other gender. So उसकी जितनी जो मेरी नॉलेज है उसके मुताबिक उसकी हार्मोनल थेरेपीज होती हैं. एंड I can't say it's natural or what. See, DSM has labeled it as a disorder. So if it is a disorder, it is a disorder. So this is something you need to consult a psychiatrist for that. Okay, so I'm again doing a job of host. Let me read out the comments again. Zaidur Rahman said, brilliant. Thank you, Zaidur Rahman sahab. Sabahat Arshad said, good job. Thank you. Zaidur Rahman said, you are up level. Thank you. Manu said, good job, ma'am and Misbah. Thank you. Subhanur Rahman Barki sahab said, great work. Ziaur Rahman hashtag somebody. Khushi Khan said, love to see you, ma'am. Thank you, Khushi. Mushra Khan said, well done, Nazish. Mariam Fahad Ali said, this is really a great point in disability research. True, so true. Mariam Farhad said, it is terrible. It is sad and terrible. I think ये जब हम उन तमाम चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे ये तब आपकी स्टेटमेंट थी. Bushra Khan said, thank you for explaining OT in such a nice and easy way. Thank you for taking out time and listening to me. Mariam Farhad Ali said the concept of inclusion is also not clear in Pakistan schools. This is so very true. It is not clear in Pakistan, especially in our schools. So the awareness has to start from somewhere, and we all are here to create awareness. So we have to start from somewhere, and we need gradual realignment. We need small steps. So if we have people like you around us, we will definitely make a change in the society, inshallah ta'ala. Muhammad Junaid said, great work. Ma'am Neelam Zahra said, good that you clear disability. Thank you, ma'am. Subhanur Rahman Barki तालियां बजाई हैं इन्होंने. Okay.
Neelam Zahra said, actually, inability to do anything is disability, like inability to see or conceive or work. So true, so true. So Mariam Farhad Ali said, awareness can be created by speaking all this publicly. So true. Mukhlis Razak said, excellent work. Thank you. Maria Ehtisham said, excellent. Mariam Farhad Ali said, yeah, and in laws it's written that there should be ramp in all public places, building, restaurant, shopping malls, but it is not being implemented. That is so very true. Even हमें schools में चीजें accessible नहीं मिलती हैं. So this is so true. लिखा हुआ है but implement नहीं होता. But अगर ये चीज बार-बार highlight होगी तो hopefully inshallah we will make a change towards it. Not even in schools, restaurants, parks और यहाँ सब भी ये वाली चीजें नहीं होती. Hajra Jahan said, you explain it very clearly. Thank you, Ma'am Nazish. Hello, Misbah. The stage is all yours, please. Walaikum assalam. Welcome back. So I think so almost comments को आपने read कर लिए हैं और questions जो थे वो भी Yeah. जो questions थे वो भी आपने मेरी ड्यूटी कुछ देर के लिए संभाल ली थी. So thank you so much for that. और at the end it's time to end the session. So thank you so much जिन लोगों ने join किया. Okay, Misbah has gone again, I guess. Misbah, are you there? Okay, I guess Misbah ये कहना चाह रही थी कि thank you everyone who has joined and thank you everybody for your valuable comments. I really appreciate, and I really appreciate that you people have taken your precious time to listen to this session. Thank you so much. Please, everybody, I request you please support Holistic. It's an awareness campaign we all have started. Good luck to the team Holistic, and the take-home message is try to appreciate everybody who is in the surrounding, or give love to everybody, appreciate others, forgive the small mistakes if somebody has made, spread love, be positive, surround yourself with positive people. It is really very important. Your mind is like a garden, so आप चुन के अच्छे positive फूल इसमें लगाएं. It will affect your personality and your nature as well. So thank you so much, each one of you. Good luck, stay happy, stay positive, spread love. और अल्लाह पाक आप लोगों की हिफाजत करे इस पेंडेमिक में. Thank you so much. Misbah, if you're here, so Can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, so thank you so much, ma'am. Thank you so much. आपने टाइम निकाला और इतना अच्छा एक्सप्लेन किया. मेरे लिए काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव थी. इसी तरह लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत न्यू थी, जो कि हमें पहले नहीं पता थी. तो उसके लिए थैंक यू सो मच. और बस यही एक मैसेज है कि आजकल जो कंडीशन चल रही है इसमें भी लोगों के साथ बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं. Exactly. आप जो है वो घर पे रहना और इस तरह की एक क्योस की कंडीशन और एंजाइटी लोगों को हो रही है इस पेंडेमिक की वजह से. तो घरों में रहें और अपने आप को सेफ रखें और बस इस तरह के अच्छे सेशंस अटेंड करते रहें. Yes, and stay happy. Stay happy. Thank you so much. Okay, bye bye. Allah Hafiz, everyone.